Hello students, good morning all of you. Students, as all of you know that your exercise 5.2 has been finished, and in exercise 5.2 you have learned about how can we multiply the algebraic expression, because you are all of you know that there are lots of type of algebraic expression. In starting of chapter you have learned that if an algebraic expression have one term, then this is called monomial, and two term it is called binomial, etc. So today I will discuss that how can we divide an algebraic expression. So there are some types of algebraic expression you have to divide in this exercise. So first type is division of monomial by monomial. Second type is division of polynomial by a monomial. And third type is division of polynomial by a polynomial. Okay, so student, you are all of you know that in monomial there are one term, okay, but in this polynomial you have to learn that how can we divide more than one term, like binomial, trinomial, or multinomial, 4 term, 5 term. So in this polynomial there are algebraic expression has included which is more than one term. बच्चों, इस polynomial में आप binomial, trinomial या 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म जो भी है उसको आप मोनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे, और उसके बाद पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल मीन्स हुआ कि मोर देन 2 टर्म्स का मोर देन 2 टर्म्स में आप डिवीजन करना सीखेंगे. सो स्टूडेंट, इन दिस टाइप we will use the factor method. That is, we will separate the factors, then we will have to cancel each term like term. Okay, so we will use in this type we will use factor method, and in this type we will use long division method. Okay, so let's start in exercise 5.2. Sorry, 5.3, because 5.2 has been finished. We have to divide the algebraic expression. So in this question, divide the following. First part is 32x square y square by 8x. So student, we will first look carefully. We will write this problem in, first of all you have to write this problem in फ्रैक्शन फॉर्म लाइक दिस. बच्चों, पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है इस तरह से. देन आफ्टर यू हैव टू सेपरेट all the factors, like here literal term is x square and y square, so we can write x into x, then y into y, and here 8x means 8 multiply x. So here we can cancel 8 1s are 8, 8 4s are 32, and here x is cancelled, so we can write 4, here x, single x is remaining, and here y into y. बच्चों, y into y means y power 1, it means y power 1 plus 1, it means y power 2. So we can write y square
or we may say that y power 2. Okay, so this is the final answer. So this is called the factor method. Now we can write the b part is minus 72 p power 4 and q power 3 by 6p square and q square. Now student, again we can write first step you have to write in fraction form like this. Now we can write in separate in fraction. So here we can write p into p, you have to write p into 4 times and you have to write q into 3 times, and 6 into p, here p has given 2 times and q has given 2 times. So 6 1 just 6, 6 12 just 72, and here p cancel and 2q cancel. Then we can write minus 12, and here 2 times p is remaining, so we can write p square, and q 1 time q is remaining, so we can write q, and this is the answer. Okay, so I hope you are all understand how can we change, how can we write in first step. Then after you have to write all the literal term in separate factor, in separate factors. Then after you have to cancel each like term and write the remaining term after that. Then this is the final answer of this equation. So student, we are moving to the next question, but before moving to our next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving another type of question. This is the C part. Here we have to divide the trinomial by a monomial, so we can write in first step like in fraction form like this. Okay, now student, recall the first method that we have to separate in because in question number A and B is the type of monomial by a monomial. बच्चों जो पहला फर्स्ट और ए और बी टाइप था बच्चों, वो मोनोमियल से मोनोमियल के लिए था, है ना। अब इसमें आपको जो है एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से जो है डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो इसके लिए बच्चों क्या करना होगा, ये जो पॉलिनोमियल है बच्चों, इसमें हम इसे देखिए ये माइनस लगा या प्लस लगा, ठीक है। माइनस और प्लस को हम सेपरेट करेंगे। किस तरह से करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे 45x³। देखिए ये जो डिनोमिनेटर है, इन जैसे इसमें बच्चों कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। तो इन 3 टर्म्स के लिए हम अलग अलग डिनोमिनेटर इसको यूज़ करेंगे। जैसे देखिए इसमें 5x लिख देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ क्या लगा है बच्चों, माइनस लगा है, 30x² अपान 5x लिखेंगे, फिर यहाँ क्या लगा है बच्चों, प्लस लगा है 25x अपान। क्वेश्चन का टाइप समझ लीजिए बच्चों, क्वेश्चन का टाइप सही है कि हम इस पॉलिनोमियल को किस तरह से करते हैं बच्चों। पॉलिनोमियल को करने का तरीका ये है कि अभी अगर मान लीजिए 1 टर्म होता, अभी आपने मोनोमियल का हमने बताया था, जैसे मान लीजिए ये 1 टर्म है 45x³ है ना, और अपान लिखा होता 5x, तो हम ऐसे इसको सेपरेट कर देते हैं, x इंटू x अपान 5x। लेकिन यहाँ पर बच्चों 3 टर्म्स हैं, कितने हैं, 3 टर्म्स हैं। तो सभी के लिए हम ये 5x एज ए डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम इसका डिनोमिनेटर लेंगे तो हमें 5x ही मिलेगा, है ना, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। सभी क्या है, सभी बच्चों सभी क्या है, इन सभी के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। दिस इज द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो in polynomial. If you have given, you have to divide polynomial by a monomial. Now again we can separate the literal factors like this, x into x up to 3 times,
माइनस 30 इंटू x into x upon 5x. You have to write 5x like 5 into x and 25 into x upon 5 into x. Now here x cancel, 5 1 is 5, 5 9 is 45, x cancel, 5 1 is 5, 5 6 is 30, and here 5 5 is 25 and x cancel. So we can write here 9 and here x remaining 2 times, so we can write x square minus 6. X has given 1 time and here only 5 has given. So this is the answer. Okay. Now we are moving some another question like D part is, or you may write D part. D part is 12x square y square plus minus 9x square xy square plus 6x square y square by 3xy. So again we follow the same step. First of all, you have to write in fraction form like this: minus 9xy square plus 6x square y square upon 3xy. बच्चों अब इसमें भी वही हम स्टेप फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम इन सभी टर्म्स के लिए अलग अलग डिनोमिनेटर यूज़ करेंगे इस तरह से. जैसे देखिए इसमें 12x क्यूब अपान वाई स्क्वायर अपान 3xy माइनस 9xy स्क्वायर अपान 3xy एंड प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 3xy. नाउ स्टूडेंट वी कैन सेपरेट. बच्चों एक मेथड और है, इसको तो हम फैक्टर इसमें डिवाइड कर रहे हैं. देखिए कैंसिल कर रहे हैं ना, अलग अलग सेपरेट करके डिवाइड कर. एक मेथड और है बच्चों, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट मेथड. एक्सपोनेंट मेथड जो आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, एक्सपोनेंट एंड पावर में, वो मेथड यूज़ करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए कैसे करते हैं. इसमें आपको जो है एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक फार्मूला लगाना पड़ेगा. ए पावर बी अपान ए पावर एम अपान बी पावर एम. बी पावर ए पावर एम अपान ए पावर एन. सो वी कैन राइट ए पावर एम माइनस एन. इस तरह से फार्मूला लगाना पड़ेगा. ये फार्मूला आप यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. इस तरह से आप एक ये मेथड है, एक दूसरा मेथड भी है जिसका हम एक्सपोनेंट. तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, देखिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 12/3 और इसमें देखिए x पावर यहाँ पर 1 है. समझ लीजिए यहाँ पर 1 है. जब पावर नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं. अब बच्चों देखिए यहाँ x सेम पावर सेम बेस सेम है. बेस सेम है बच्चों. देखिए ए पावर एम अपान ए पावर एम. कैसे लिखेंगे हम, ए पावर एम माइनस एम. तो बेस सेम है, x दोनों में सेम है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब अपान एक्स पावर 1. इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 3 माइनस 1. और इसमें कैसे लिखेंगे, y पावर 2 माइनस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 हो जाएगा. माइनस 9/3. इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, x पावर यहाँ पे भी 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. और यहाँ पर 2 है, y पावर 2 माइनस 1 प्लस 6/3. यहाँ पर बच्चों क्या होगा, x पावर 2 माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, y पावर 2 माइनस 1. तो देखिए बच्चों 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4. यहाँ पर बच्चों देखिए x पावर 3 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है. y पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा. 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक है. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड हियर x पावर 0 हो जाएगा. y पावर 2 माइनस 1 लिखना हो तो लिख सकते हैं. और यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
2x का पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और y पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर वाई 1 हटा दीजिए, 1 अंडरस्टूड है। जब किसी वेरिएबल का पावर 1 होता है तो उसको 1 अंडरस्टूड होता है, लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक है। -3 x पावर 0 का मतलब बच्चों 1 होता है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि कोई अगर नॉन ज़ीरो इंटीजर होगा, नॉन ज़ीरो इंटीजर का पावर 0 हमेशा उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये 1 हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे y प्लस 2xy, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके बच्चों, आंसर में कोई भी टर्म आगे पीछे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये टर्म पहले लिखा है तो ये टर्म लिखा है तो ये लास्ट में लिखा है, ऐसा हो सकता है। आपके आंसर शीट में भी कुछ ऐसे ही आंसर आ रहा होगा। जैसे इसमें फर्स्ट का डी पार्ट देखिए 5.3, फर्स्ट के सी पार्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 9x स्क्वायर माइनस 6। फर्स्ट डी में आ रहा है बच्चों 6xy माइनस 3y, 4 2 6। यहाँ पे कुछ चेंज हो गया ऐसा, ये बच्चों यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो यहाँ पर 1 बचेगा बच्चों, 1, ठीक है। तो देखिए अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पर लाइक टर्म मिल गए हमको। यहाँ पर बच्चों लाइक टर्म मिल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर 4xy और 2xy, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, 6xy माइनस 3x पावर 0 1 हो गया, तो यहाँ बचा क्या y, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके सो स्टूडेंट, दिस इज द अनदर मेथड you have to apply, this is the method and this is the another method। बच्चों ये एक मेथड है जिसमें हम सारे फैक्टर को सेपरेट करके कैंसिल करके आंसर निकाल सकते हैं, और इसमें बच्चों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के आंसर निकाल सकते हैं। दोनों मेथड आपको देख लेना है, कोई भी मेथड लगा के आंसर आपका सेम ही आएगा, बट आपको जो मेथड समझ में आता है वो मेथड आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the second question. So second question is types of mensuration branch, and you have learned the chapter area and perimeter in class 7th also. So here the question is, find the length of a rectangle whose area is this and breadth is this। बच्चों इसमें एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है, तो आपको लेंथ फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन जो है अलजेब्रा एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर कोई नंबर्स के फॉर्म में दिया होता तो आपको आंसर तुरंत मिल जाता, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि अगर लेंथ आपको फाइंड करना होता है तो लेंथ इक्वल टू होता है एरिया अपान ब्रेथ। क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। तो बहुत इजी फार्मूला है, बस इसको थोड़ा सा इसमें चेंज क्या है बच्चों, बस चेंज यही है कि अब ये जो आपको जो टर्म्स दिए हुए हैं, वैल्यू दी हुई है, वो अलजेब्रा एक्सप्रेशन के फॉर्म में दी हुई है। तो अभी तक आपने जो डिवाइड किया है वही हम सेम इसमें भी यूज़ करेंगे मेथड। बस इसमें देखिए बच्चों, इसमें मोर देन 3 टर्म्स है, इट मीन्स ये मल्टी नॉमिनल्स का एग्जाम्पल है ना। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन, गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये लिखिए आप 20x³ वाई स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 10xy स्क्वायर प्लस 5xy, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to 5xy, then length
of rectangle is equal to area upon breadth, that is you have to write this 20x cube y square minus 15x square y square plus 10xy square plus 5xy अपान 5xy। बच्चों इसमें भी वही मेथड लगाएंगे, सभी टर्म्स को सेपरेट करेंगे और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे 5xy लिखेंगे। देखिए 20x क्यूब वाई स्क्वायर अपान 5xy माइनस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 5xy एंड 10xy square upon 5xy, then after you have to write 5xy upon 5xy। बच्चों इसमें एक्सपोनेंट वाला मेथड लगाएंगे हम। देखिए 20 अपान 5 हो गया और यहाँ पर देखिए पावर क्या है बच्चों, x क्यूब है, x पावर 3 है, यहाँ पर क्या है बच्चों x पावर 1 y पावर 1, तो माइनस हो जाएगा ना x पावर 3 माइनस 1 एंड हियर y पावर 2 माइनस 1, देन माइनस 15 अपान 5। यहाँ पर बच्चों देखिए x पावर 2 है और यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ पर भी y पावर 2 है, y पावर 1 है, प्लस 10 अपान 5 एंड हियर x पावर 1 यहाँ पे भी है बच्चों, यहाँ पे भी है, तो 1 माइनस 1 बाद में इसका वैल्यू 1 ही आएगा क्योंकि 0 हो जाएगा और x पावर 0 1 होता है, ठीक है, एंड y पावर 2 माइनस 1 एंड हियर बच्चों देखिए 5 5 x y सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड हियर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो वी कैन राइट 4। बच्चों यहाँ देखिए x पावर 3 माइनस 1 लिखा है, ठीक है, तो x पावर 2 बचेगा और y पावर 2 माइनस 1 y हो जाएगा, माइनस 3 x पावर 2 माइनस 1 x हो जाएगा क्योंकि x पावर 1 बचेगा, x पावर 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 लिखिए जाने के 1 अंडरस्टूड होता है, यहाँ पर भी y पावर 1 होगा। ऐसे ही यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 2 x पावर 0, बच्चों यहाँ पर क्या हो गया x पावर 0 क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है 0 होता है, 1 माइनस 1 0 उसकी वैल्यू 1, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे सीधे y लिखेंगे क्योंकि y पावर 2 माइनस 1 होता है y पावर 1 यानी कि y, ठीक है। नाउ वी कैन राइट द कांस्टेंट टर्म is here 1, so this is the final answer, okay। So student, before moving our next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot। Now student, this is the another question which is also belongs the chapter area and perimeter, which you have to learn, you have learned in class 7, so you have to here the question is find the height of the triangle whose area is this and base is this। So student, you are all of you know that area of triangle का फार्मूला आपको पता होगा, इसका फार्मूला होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर हमें हाइट निकालना है बच्चों तो इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया अपान बेस, और अगर बेस आपको निकालना है बच्चों इसी फार्मूले से आप लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया अपान हाइट। तो इस फार्मूले से आप दो फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे, हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया अपान बेस। नाउ हियर वी कैन स्टार्ट द सॉल्यूशन। गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x एंड base of triangle is equal to 2x, then height of triangle is equal to 2 multiply area upon base, so we can write here 2 into area is given has given x cube minus 6x square plus 11x upon 2x, okay। So here 2 and 2 is cancelled, so we can write x cube minus 6x square plus 11x upon
एक्स। बच्चों इसको भी हम सेपरेट करेंगे अभी तक जैसे आप करते चले आ रहे हैं, एक्स क्यूब अपान एक्स माइनस 6x² अपान एक्स प्लस 11x अपान एक्स। अब इसमें हम सेपरेट फैक्टर्स को सेपरेट करके जो अपने फर्स्ट ए बी पार्ट में आपने मेथड यूज़ किया था वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। बच्चों दो मेथड्स हैं, एक आपका सेपरेट द फैक्टर वाला मेथड है, एक है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर वाला, लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर वाला मेथड है। तो वो दोनों मेथड आप यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। दोनों मेथड में आपका आंसर जो है सेम मिलेगा, x इंटू एक्स अपान एक्स प्लस 11 इंटू एक्स अपान एक्स। सो वी कैन हियर x and x cancel, and here x and x cancel, and here x and x cancel. So we can write here x square, because here x is 2 times, and here 6x minus 6x plus 11 is the answer. Okay, so student, you have to, I hope you are all understand how can we divide the monomial by a monomial with the help of two methods like separate the factors method and also as well as exponent and power method with the help of larger exponent. And here we have learned how can we divide a monomial by a monomial and as well as polynomial by a monomial. So in next video I will discuss that how can we divide a polynomial by a polynomial with the help of long division method. So till then you have to write, you have to solve the remaining question of first, that is E and F. At least E and F both अगर आप दोनों सॉल्व करना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कम से कम एक जरूर सॉल्व करें विद बाय योर सेल्फ, बच्चों अपने मन से जरूर सॉल्व करें, ठीक है। बट बिफोर वॉचिंग ऑल द स्टेप्स you have to follow to solve this question. Okay, so thank you very much for being with us.